Hello everyone. We are discussing the topics of climatology under Geography Prelim series, and today's topic of discussion is continentality and maritime effect. The reason we have selected this topic is because in 2023 a question has been asked directly related to this topic. In fact, in 2024 also there was a question which was solved with the knowledge of this continentality and maritime effect. That question was related to the uh, isothermal lines. So let's take up this question. Let's see this question and then we'll go in the details of continentality and maritime effect. This is a small topic. So the question is, consider the following statements. Statement 1. Temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. Second statement, specific heat of water is more than that of land surface. So two statements have been given, and based on these two statements, the options have been framed. So before coming to the options, let's see the concept of continentality and maritime effect. So when we talk about this concept, continentality and maritime effect in geography, before coming to this concept, you need to be aware of another concept called specific heat. So this idea of specific heat we studied in the school days, and that basic science knowledge will help us in understanding the terms called continentality and maritime effect. So what is this specific heat? So let's take an example and then we'll define the specific heat. Let's assume that I'm taking 1 kg of water and 1 kg of some land mass. दोनों एक एक kg का हमने लिया. And I want to increase the temperature of both these substances by 1 degree Celsius. So idea is you have to supply heat to it. You have to supply heat to both. In order to increase the temperature कैसे बढ़ेगा? आपको heat supply देना होगा. So when you supply heat, you notice that the heat required for increasing the temperature of water by 1 degree Celsius is more compared to the heat required for increasing the temperature by 1 degree Celsius to land mass. So वाटर को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ी और लैंड मास की हीटिंग के लिए रिलेटिवली कम हीट लगी, जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए. So the idea of specific heat says that specific heat is the amount of heat is the amount of heat needed to increase the temperature, increase or decrease both. So in case there is decrease in the temperature, so there would be release of heat. So the amount of heat needed or released to increase or decrease the temperature by unit temperature of unit
mass of a substance. तो एक यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या घटाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी या रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. इस केस में हमें टेम्परेचर बढ़ाना था तो हमने हीट सप्लाई दिया. जब टेम्परेचर 1 डिग्री कम करना होगा तो हीट रिलीज होगी. सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. एंड वन थिंग यू नोटिस दैट the heat that was needed to increase the temperature by 1 degree Celsius of this 1 kg mass of water and land mass, the heat was different. So it means that specific heat is different for different bodies, or in other terms if I write, the specific heat of water is more than the specific heat of land mass, or in other words I can say कि water heating or cooling is difficult or slow compared to heating or cooling of landmass. मतलब कि लैंडमास जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा. तो अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो, एक वाटर बॉडी है, लेट्स से दिस इज सम वाटर बॉडी एंड लेट्स से दिस इज सम लैंडमास, दिस इज सम वाटर बॉडी. सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर आप दे रहे हैं, लेट्स से यू आर सप्लाइंग द हीट थीटा, सो वाटर का टेम्परेचर लेट्स से T1 हुआ और इसका टेम्परेचर T2 हुआ, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1 क्योंकि लैंड मास की हीटिंग ज़्यादा इजीली हो रही है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ हीट पे देयर इज अ थर्मल कॉन्ट्रास्ट और टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट. टेम्परेचर में वेरिएशन है and this variation is attributed to the different specific heats of water body and the land mass. So let's see what is happening in summer. So let us assume that this is a land mass, this is some big land mass, कोई एक continent है, it is surrounded by water. This I am taking as the equator. Obviously this becomes the northern hemisphere, this becomes southern hemisphere. मान लेते हैं कि समर है नदर्न हेमिस्फेयर में, तो जब समर नदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो लेट्स से कि इट इज द मंथ ऑफ मई जून जुलाई. सो सेम टाइम पीरियड में सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा. जब नदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा. तो लेट्स सी कि नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रास्ट कैसा हो रहा है और कितना हो रहा है. तो अपने को पता है कि अगर ये वाटर बॉडी है और ये लैंडमास है, नदर्न हेमिस्फेयर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लैंडमास की हीटिंग ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे समर है. हीटिंग वाटर बॉडी की भी होगी, बट हीटिंग ऑफ लैंडमास, the rate of heating of landmass in northern hemisphere due to summer would be more compared to the that of the water body.
तो मान लेते हैं कि लैंड मास का टेम्परेचर इज टी एल समर में एंड दिस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इज टी डब्ल्यू। तो northern hemisphere में since it is summer over here, so TL could be greater than TW। टेम्परेचर मतलब ये ज्यादा हीटिंग हो रही है इसकी। तो दिस टेम्परेचर कंट्रास्ट विल बी देयर। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में क्योंकि विंटर है तो इसकी कूलिंग ज्यादा हो रही होगी लैंड मास की। लैंड मास की जब कूलिंग ज्यादा होगी तो लेट्स से टेम्परेचर इज अगेन हेयर TL, यहाँ पर टेम्परेचर इज TW। सो ओवर हेयर इन सदर्न हेमिस्फेयर TL would be less than TW। तो सेम टाइम पीरियड पे टेम्परेचर कंट्रास्ट है। एक जगह पर लैंड मास का टेम्परेचर ज्यादा है, एक जगह पर वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। आई होप यू गॉट द रीजनिंग बिहाइंड इट। तो लेट्स सी कि इफ वी आर इन नदर्न हेमिस्फेयर, किसी भी एक हेमिस्फेयर में हैं हम, लेट्स सी सेम हेमिस्फेयर में, इन द सेम हेमिस्फेयर समर और विंटर में कंट्रास्ट किसमें ज्यादा होगा? तो थर्मल कंट्रास्ट, जो थर्मल डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो समर में ज्यादा होगा या विंटर में ज्यादा होगा? क्योंकि थर्मल कंट्रास्ट तो दोनों सीजन में रहेगा। तो लेट्स से कि हमने नदर्न हेमिस्फेयर लिया है। नदर्न हेमिस्फेयर में लेट्स से समर, तो समर में लैंड मास की हीटिंग ज्यादा हो रही है, वाटर बॉडी की हीटिंग हो रही है, बट कंपेयर टू लैंड मास कम हो रही है। But temperature difference is there, thermal contrast is there। सेम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर में लैंड मास की कूलिंग हो रही है, वाटर बॉडी की भी कूलिंग हो रही है, बट लैंड मास की कूलिंग ज्यादा हो रही है कंपेयर टू दी वाटर बॉडी। फिर से टेम्परेचर कंट्रास्ट इज देयर। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है विंटर और समर में, ये कंट्रास्ट किस में ज्यादा है? So whether thermal contrast is more in summer or in winter. So if you look at this factually, observation से पता चलता है कि winter contrast, winter thermal contrast is more than summer thermal contrast। ये ऑब्जर्वेशन से अपने को पता चला। बट इसकी रीजनिंग अगर हम फिगर आउट करने की कोशिश करें तो रीजनिंग इसकी ये होगी कि समर में हीटिंग हो रही है सर दोनों सरफेस की। लेट्स से दिस इज लैंड मास एंड दिस पार्ट इज वाटर बॉडी। इसकी भी हीटिंग, इसकी भी हीटिंग, बस इसकी हीटिंग ज्यादा हो रही है, इसकी हीटिंग रिलेटिवली कम हो रही है। जब कोई बॉडी हीटेड अप होती है तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी स्प्रेड आउट होने की ज्यादा है। तो दोनों में जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो यहाँ हीट हुए ये इसमें मर्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी मूवमेंट की ज्यादा है बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हायर गेन ऑफ द हीट। तो ये कंट्रास्ट कम हो जाएगा। विंटर में क्या हो रहा है कि दोनों कूल हो रहे हैं, तो जब कूल हो रहे होंगे तो पार्टिकल्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा मूव करने की नहीं होगी, तो कंट्रास्ट दोनों में ज्यादा रहेगा, दोनों में गैप ज्यादा मेंटेन रहेगा। तो फॉर दैट रीजन विंटर हैज ग्रेटर थर्मल कंट्रास्ट कंपेयर टू दी समर। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट और अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें इसी से रिलेटेड, द सेम थर्मल कंट्रास्ट अगर हम हेमिस्फेयर वाइज देखें, नदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होगा या सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होगा किसी भी सीजन में? तो अगर नदर्न हेमिस्फेयर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो नदर्न हेमिस्फेयर में देयर इज डोमिनेंस ऑफ लैंड मास। नदर्न हेमिस्फेयर में नियरली 65 to 70% of total land mass
is found in the northern hemisphere. तो मतलब remaining land mass is in southern hemisphere, somewhere around 30 to 35%. सर अगर नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा होगा और वाटर बॉडी कम होगी तो यहाँ पे कंट्रास्ट ज्यादा विजिबल होगा. सदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली इट इज वाटर, तो जो थर्मल कंट्रास्ट आएगा क्योंकि हर जगह वाटर है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वुड बी डोमिनेंट, तो थर्मल कंट्रास्ट कम हो जाएगा. तो नदर्न हेमिस्फीयर का थर्मल कंट्रास्ट वुड बी मोर देन द थर्मल कंट्रास्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, राइट. तो ये तो हुआ स्पेसिफिक हीट से कैसे थर्मल कंट्रास्ट आएगा. Now let's see what is continentality and maritime effect. So due to this slow heating of water body, the area present in proximity to the water body, they'll experience some kind of influence of the water body, and this influence is known as maritime effect. अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज अ लैंड मास, इसको सराउंड कर रहा है कोई वाटर बॉडी. तो दिस वाटर बॉडी will have higher specific heat, will assert maritime effect over this surrounding landmass. तो ड्यू टू दिस मैरीटाइम इफेक्ट, जो ये इसके पास का लैंडमास है, वाटर बॉडी के पास का लैंडमास है, this will experience moderation in the temperature. मॉडरेशन इन दी टेम्परेचर का मतलब कि अगर विंटर होगा तो विंटर बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा. जितना भी विंटर, अगर ये वाटर बॉडी नहीं होता तो विंटर जितना भी एक्सट्रीम उसका हो सकता था, वाटर बॉडी होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि वाटर बॉडी की हीट कूलिंग उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी लैंडमास की हुई. तो वाटर बॉडी का इफेक्ट विल कम टू द सराउंडिंग लैंडमास. तो जो टेम्परेचर नीचे जा सकता था वाटर बॉडी की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ऊपर रहेगा. तो विंटर वुड बी माइल्ड. इनफैक्ट समर में इसकी लैंडमास की खूब हीटिंग होगी, वाटर बॉडी की हीटिंग रिलेटिवली कम होगी. तो वाटर बॉडी का इन्फ्लुएंस विल गो टू द सराउंडिंग लैंडमास. तो इसलिए जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ सकता था लैंडमास का, वाटर बॉडी की वजह से टेम्परेचर रिलेटिवली कम होगा. तो समर विल ऑल्सो बी माइल्ड. तो इसलिए मैंने बोला देयर वुड बी माइल्डनेस और मॉडरेशन इन द टेम्परेचर. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम इफेक्ट. इसीलिए आप देखोगे, इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, मुंबई आप देखिए, मुंबई इज अ कोस्टल सिटी. तो मुंबई में आपको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन द वार्मेस्ट मंथ and temperature in the coldest month. Their difference is called annual range. तो जो highest temperature होगा in any month and the lowest temperature in any month, जो उनका difference है, that is called annual range. तो annual range आपका मुंबई में कम होगा. क्यों? क्योंकि विंटर भी एक्सट्रीम नहीं है, समर भी एक्सट्रीम नहीं है. तो समर बहुत गर्म नहीं है, विंटर बहुत ठंडा नहीं है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज वो कम हो जाएगा. अगर मुंबई के ही आप पैरेलल में आगे बढ़ेंगे तो आपको अहमदनगर मिलेगा, औरंगाबाद मिलेगा, ऑलमोस्ट अक्रॉस सेम लैटिट्यूड. बट क्योंकि वो इंटीरियर में प्रेजेंट है, हिंटरलैंड में प्रेजेंट है, इनलैंड में प्रेजेंट है, तो वहां पे कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट आएगा. कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट क्या होता है कि एक area which is surrounded by the land, it is not surrounded by the water. तो जो लैंडमास, जो सराउंडिंग लैंडमास है,
उसका इफेक्ट विल कम टू द सराउंडेड लैंड मास। तो जब समर होगा तो सराउंडिंग लैंड मास भी बहुत हीट होगा, तो वो अपना भी इंफ्लुएंस उस सराउंडेड लैंड मास पे डालेगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटलिटी। सिमिलरली विंटर में लैंड मास भी हीट होगा, सराउंडेड लैंड मास एज वेल एज द सराउंडिंग लैंड मास, दोनों की इक्वल कूलिंग होगी विंटर में, तो उसका भी इंफ्लुएंस आएगा। तो इसलिए अहमदनगर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, या बोलो औरंगाबाद, they all, due to continentality, they will experience extremes of weather, extremes of seasons। मतलब विंटर बहुत ठंडा, समर बहुत गर्म। क्यों हो रहा है ये? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी, बिकॉज अहमदनगर, औरंगाबाद, they are surrounded by the land mass। Is that okay? So this is the effect of continentality and maritime effect. So any area which is in proximity to the ocean body, water body, that will experience moderation in the weather conditions, moderation in the seasonal conditions। तो यहां पर अगर आप देखेंगे औरंगाबाद और अहमदनगर में, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर compared to Mumbai would be high। In fact, diurnal range of temperature, that range in Mumbai would be less compared to Aurangabad and Ahmednagar। या दिल्ली को आप ऑब्जर्व करिए, दिल्ली और मुंबई को कंपेयर करिए, तो दिल्ली में यू विल फाइंड एक्सट्रीम्स ऑफ सीजन्स, बट मुंबई में यू विल नॉट फाइंड द एक्सट्रीम्स ऑफ सीजन्स। So this was about continentality and maritime effect. Now let's see the question. Question says thermal contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि विंटर में टेम्परेचर कंट्रास्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू समर। विंटर में इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि विंटर में लैंड मास और वाटर बॉडी दोनों की कूलिंग हो रही है, तो हीट स्प्रेड आउट कम होगी। समर में क्या होगा, दोनों की हीटिंग होगी, दोनों की डिफरेंशियल हीटिंग होगी, लेकिन हीट भी साइमल्टेनियसली स्प्रेड आउट होगी। क्यों? क्योंकि हीटेड ज्यादा है, हीटेड पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू मूव, तो इसलिए समर में टेम्परेचर कंट्रास्ट कम होगा। सो दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। ये हमने अभी चेक किया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द लैंड सरफेस। सो according to this, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So D is the most appropriate option. So D for Delhi is the right answer to this question. So this was about continentality and maritime effect. See you in the next video. Thank you so very much. All the best.